Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. That today that topic of the physics is chapter number chapter number 7, unit number 7, properties of matter. In this chapter, we want to study the what are the properties of the matters and what are the states of the matter and what are the laws related to the matters. First of all, the theory, a model of the metals is first of all is kinetic molecular model of metals. Is what is a kinetic molecular model of metals? Is that the kinetic molecular model of metals as shown in figure. You can see from your left side of the figure 7.2 the kinetic molecular model of the three state of the metal. The first state is for the gas and the second is for liquid and third is state for the solid. The kinetic molecular model of the metal as shown in figure 7.2 has some important features. These are the metals are made up of the particles called molecule. First of all, we should know that the matter is made up of particles, and we can say that molecules. The molecules remain in continuous motion. The motion of the molecules remain in continuous manner, which means that they are moving in the random motions and they are move continuously. मुसलसल वो मूव करते रहते हैं, ठीक है. They are not stationary, or we cannot say that they are in rest form. They are in continuous motion form. Molecule attached together attract each other. कि जो molecules हैं वो एक दूसरे को attract भी करते हैं. Kinetic molecular model is used to explain the three states of the metal, solid, liquid and gas. बेसिकली ये जो मॉडल है, इस मॉडल का ये फ़ायदा था, ये मॉडल हम लोगों को मेटल की तीन स्टेट्स जो होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताता है वो क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट आती है. सॉलिड सच एज द स्टोन्स, metal spoons, pencils, etc. Have the fixed shape and volume. Basically a solid have a fixed shape and volume. मतलब उनका एक शेप, उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनका वॉल्यूम क्या होता है वो फिक्स होता है. द मॉलिक्यूल आर हेल्ड क्लोज टुगेदर. कहते हैं एक तो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने पास होते हैं कि वो आपस में अप्रोक्सीमेटली वी कैन से डैट दे आर combined, they are attached to each other. Their molecules are held to each other, such as shown in figure 7.3. The molecules are closely packed in the solid, ठीक है, by the strong force of attraction. क्यों? क्योंकि इनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, या वी कैन से डैट intermolecular forces. However, they vibrate above their mean positions but do not move from the place to place. बट होता इसमें ये है कि एक जो मॉलिक्यूल है सॉलिड का वो अपनी जगह पर रह के वाइब्रेट करता है या ओसिलेट करता है. ओसिलेट और वाइब्रेटिंग मोशन कौन सी होती थी? ऐसी मोशन बेटा जिसमें पॉइंट एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही मेन पोजीशन पर रह कर मूव टू एंड फो मूव करता है. टू एंड फो मतलब आगे पीछे, ठीक है, बट वो मूव नहीं करते सॉलिड में. तभी तो वो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, ठीक है. इसके अलावा द डिस्टेंस बिटवीन द, अब लिक्विड्स की बारी, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड. We have discussed the model of the metals and the three states of the metal in and plus the solid. In liquid, which is the second state of the
metal. The distance between the molecule of the liquid are more than in solid. The attractive force between them are weaker. Like solid molecule of the liquid also vibrate about their mean position, but not rigidly held with each other. Due to the weaker attractive forces, they can slide over and over. Thus, the liquid can flow. The volume of a certain amount of liquid remains the same, but because it can flow, hence it attains the shape of the container to which it is put. बेसिकली आपके पास जो सॉलिड होता है उसमें जो मालिक्यूल होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं. इन आप देख भी सकते हैं इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है 7.3 में दी हुई है मालिक्यूल्स की. और लिक्विड जो होता है उसके अंदर 7.4 में दी हुई है फिज़िकल अपीयरेंस. उसमें जो मालिक्यूल होते हैं उसमें भी मालिक्यूल तकरीबन आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जितने सॉलिड में होते हैं. दे हैव सम डिस्टेंस, उनके दरमियान में क्या होता है डिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड में. ठीक है, लिक्विड में होता है. अब ये क्यों होता है डिस्टेंस? बेसिकली ये डिस्टेंस होता है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. उनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो उनकी वजह से, ये फोर्सेस की वजह से ये क्रिएट होता है. और जब फोर्सेस वीकर हों तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है. बट इन द सॉलिड द फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर. इसलिए मॉलिक्यूल जो होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक 3D पैटर्न की फॉर्म में होते हैं. 3D पैटर्न की फॉर्म में होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेरियोडिसिटी शो करते हैं. लैटिस पॉइंट भी होता है उसमें सॉलिड में. बट इन लिक्विड दे आर इन रैंडम मोशंस. और जैसे कि हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं, दे कैन स्लाइड ओवर एंड ओवर. इसलिए क्या होता है जो मॉलिक्यूल होता है लिक्विड का, ड्यू टू द वीक फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है. ठीक है, दस द लिक्विड कैन फ्लो. इसलिए लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है. और वॉल्यूम लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो इसकी शेप होती है. वही लिक्विड जो होता है उसकी कोई अपनी शेप तो होती नहीं. इसलिए जब भी आप किसी कंटेनर के अंदर आप उसको पुट करते हो, लिक्विड को फिल करते हो, तो जिस कंटेनर में आप फिल कर रहे हो ना वो उसी की शेप को वो अटेन कर लेता है. ये लिक्विड की क्वालिटी होती है. हर वो चीज़ जो कंटेनर की शक्ल को अटेन कर ले उसे हम लोग कहते हैं वो क्या होता है लिक्विड होता है. ठीक है, और ये था लिक्विड. अब गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं. जो थर्ड स्टेट है, गैसेस सच एज एयर हैविंग नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. गैसेस ऐसी चीज़ होती है जो ऐसी थर्ड स्टेट है मेटल की जिसमें ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है ना वॉल्यूम होता है. पहली बात, एयर की जो एयर जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है गैसेस की. दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर और एनी शेप. वो किसी भी कंटेनर के अंदर आप लोग उसको फिल्ड कर सकते हो. देयर मॉलिक्यूल हैव अ रैंडम मोशन एंड मूव विद द हाई वेलोसिटीज़. एक तो जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास वो उसके पास बहुत हाई स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, इसलिए वो बहुत तेज़ मूव करते हैं. और उनकी रैंडम मोशन होती है, मतलब कोई भी किसी एक पैटर्न पर मूव नहीं करता, सारे डिफरेंट पैटर्न्स पर मूव कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के. इन गैसेस द मॉलिक्यूल आर सच एज फर्दर अपार्ट देन द सॉलिड और लिक्विड सच एज शोन इन फिगर 7.5. जैसे कि आप 7.5 में देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो बेसिकली बहुत फर्दर अपार्ट होते हैं, दूर होते हैं, डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा आता है. क्यों? क्योंकि उनमें जो वीक फोर्सेस होती हैं, डेट्स वाई द गैसेज आर मच लाइटर दैन द सॉलिड एंड लिक्विड. इसी वजह से जो हमारा जो गैसेज होती हैं ये बहुत लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू द स्मॉल वॉल्यूम. इसलिए उनको हम लोग बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर फिक्स्ड कर सकते हैं, उन्हें हम लोग अटैच कर सकते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ अ कंटेनर. जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं गैस के उनको जिस कंटेनर के अंदर आपने फिल किया होता है वो उनकी वॉल को जाकर स्ट्राइक करते हैं.
और इन दिस वे द गैस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अ वॉल ऑफ द कंटेनर। और इसी तरीके से क्या होता है बेटा, वो जो वॉल होती है कंटेनर की, उसके ऊपर आपके जो गैस के मालिक्यूल हैं वो बार बार स्ट्राइक करने की वजह से कहते हैं प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं वॉल के ऊपर। तो सो दिस इज़ योर 3 states of metal: solid, liquid and gas. Now the fourth state is called plasma. Now we discuss the fourth state of the metal, which is we can call as plasma. Plasma basically is the fourth state of the metal. The kinetic energy of the gas molecule goes on increasing if the gas is heated continuously. जो कनेटिक एनर्जी होती है मालिक्यूल गैस मालिक्यूल्स की, वो इंक्रीज़ कर जाती है। वो इंक्रीज़ करती है जब हम उसको एक्स्ट्रा हीट कर देते हैं। एक्स्ट्रा हीट अगर हम लोग करते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर आप लोग हीट करेंगे ना, तो जो कनेटिक एनर्जी के मालिक्यूल होते हैं ना, वो भी इंक्रीज़ करते हैं कनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल। दिस कॉजेज़ द गैस मालिक्यूल टू मूव फास्टर एंड फास्टर। तो जैसे ही उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, बेसिकली उनकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है। सो दैट्स वाई दे मूव फास्ट एंड फास्टर। ठीक है। द collisions between the atom and the molecule of the gas become so strong that the tear of the atoms। सो इससे क्या होता है बेटा, बेसिकली वहाँ पर जो collision हो जाती है बिटवीन द एटम, एक तो वो एटम और दूसरा वो गैस के मॉलिक्यूल्स, एक एटम के दरमियान में और एक वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब कुलिंगन होती है, सो बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे टीयर ऑफ द एटम। तो वो क्या करता है, एटम में से निकाल देता है। ठीक है। ड्यूरिंग इतनी ज़्यादा वहाँ पर उस टाइम हो रही होती है कुलिंगन। The atoms loses their electron and become positive ion. So during the collision process is when is running, तो एटम जो होता है द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन। एटम अपना आयन जो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव आयन, वो लूज़ कर लेता है एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन, और इस तरह वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। दिस आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये जो उसकी एटम में से जब उसका नेगेटिव आयन निकला और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, आयन जब वो क्रिएट हो गया, ये जो आयोनिक स्टेट होती है मेटल की, बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं, वो क्या होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब when electric current passes through these tube। डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th क्लास में बेटा, सेकंड चैप्टर में किनार रेज होती हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। हमारे पास बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें हम लोग उसको यूज़ करके हम लोग प्रूव करते हैं कैथोड रेज को। इसके अलावा किनार रेज को, न्यूट्रॉन रेज को भी हम लोग फाइंड करते हैं वहाँ से थ्रू दिस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जिसमें हम लोग गैस फिल करते हैं और वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं उसको। ठीक है। उसके 2 एंड्स होते हैं। जैसे आम ट्यूब होती है, उसके 2 एंड्स होते हैं, वन इज़ राइट एंड द अदर इज़ लेफ्ट एंड। The plasma is also called the fourth state of the metal in which a gas occurs in its ionic state। प्लाज्मा जो होती है उसको हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मेटल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो गैस आपकी अवेलेबल होती है वो एज अपीयर होती है आयोनिक स्टेट में। जो गैस खुद है वो एक थर्ड स्टेट है मेटल की, बट प्लाज्मा जो वो स्टेट है जो फोर्थ स्टेट कहलाई जाती है। इसमें क्या होता है, उसमें गैस जो होती है वो इन बिटवीन होती है, वो लिक्विड और गैस के दरमियान वाली स्टेट में होती है। ठीक है। उसे हम कहते हैं, वो क्या होती है, आयोनिक स्टेट। ठीक है। द पॉजिटिव आयन एंड द इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज, एनोड और कैथोड, या वी कैन से दैट केटाइन और इनाइन, वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मौजूदगी में? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताई थी इलेक्ट्रिक की वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जो मैग्नेटिक की वजह से होती है।
प्लाज्मा ऑल्सो एग्जिस्ट इन द नियॉन, बेटा नियॉन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। एंड द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती हैं वो जिसमें शाइन वाला होता है, शाइन वाली ट्यूब्स होती हैं, व्हेन दे ग्लो, जब वो जलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स दैट फिल्स द यूनिवर्स इज़ अ प्लाज्मा स्टेट। हमारे यूनिवर्स में जितने भी मेटल हैं वो बेसिकली ज़्यादातर क्या चीज़ को फिल करते हैं, बाय द प्लाज्मा स्टेट से, ठीक है। इन द स्टार्स सच एज आवर सन, जैसे हमारा सन भी एक स्टार है, मैंने बताया था हर वो चीज़ जो हमें लाइट प्रोड्यूस करती है वो क्या होती है, स्टार होती है। सेलेस्टर्स में आसमानी ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, ठीक है। गैसेस एग्जिस्ट इन देयर आयोनिक स्टेट, बेसिकली गैसेस जो होती है वो उनके अंदर आयोनिक स्टेट में होती है, मतलब लिक्विड और गैस के दरमियान वाली इन बिटवीन फॉर्म। प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मेटल, ये हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मेटल होता है। बेसिकली इसमें जितने ज़्यादा आप लोग इसमें ज़्यादातर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मेटल होता है। इसमें लोग इसमें ज़्यादातर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मेटल होता है। इसमें आप मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो। इट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, और ये करंट को पास करने के लिए इजाज़त भी देती है, परमिशन भी देती है। आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, 7.6 फिगर है। अब प्लाज्मा बल्ब आप देख रहे हैं, इसमें ये जो प्लाज्मा बल्ब है इसमें बेटा आप देख रहे हो कि शाइन कर रहा है ये दरमियान से। बेसिकली ये शाइन होती है, ये इसका आयोनिक स्टेट है, ठीक है, मेटल का, जो कि इन बिटवीन है लिक्विड और गैस के। सो डैट्स वाई ये इन बिटवीन होता है, और ये एक शाइन की तरह फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की में भी होता है, ये शाइन की तरह होता है। हमारे घर में भी जो बल्ब होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं जो रात के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये दिस इज़ योर फोर्थ स्टेट ऑफ मेटल। नाउ इन द फर्दर एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें डेंसिटी का मतलब ये होता है कि वो कितना हैवियर है, तो हम लोग उसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने जस्ट ये लिखा हुआ है जो पिंक बॉक्स है वहाँ पे, अगर आप डेफिनेशन देख रहे हैं वो लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ द सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी होती है ना वो बेसिकली डिपेंड करती है उसके मास और उसके वॉल्यूम पे। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, जितना इंसान बड़ा होता है उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइड पे एक टेबल बना हुआ डेंसिटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी इसमें से कोई एक तो वो पूछ लेते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो जो एयर की डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1.3। इसके अलावा पेट्रोल की होती है 800, कुकिंग ऑयल की होती है 920, आइसक्रीम की होती है 920, वाटर की होती है 1000, ग्लास की होती है 2500, एल्युमिनियम की होती है 2700, आयन की होती है 7900, कॉपर की होती है 8900, लेड की होती है 11200, मरकरी की होती है 13600 एंड गोल्ड की होती है 19300 एंड प्लेटिनियम की होती है 21500। और इन सब का जो यूनिट होता है डेंसिटी का होता है वो किलोमीटर पर क्यूब होता है, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो ये पढ़ लें, मतलब याद भी कर लेना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, ताकि इसमें वो पेपर में पूछ लेता, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, MCQs के एलिमेंट आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द डेंसिटी ऑफ एयर, वाटर, पेट्रोल, आइसक्रीम, ग्लास, एल्युमिनियम, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनियम, डिफरेंट सब्सटेंस की वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर या अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस।
उस सब्सटेंस का मास और उस सब्सटेंस के वॉल्यूम पर डिवाइड कर दो तो आपके पास डेंसिटी कम आउट हो जाती है, ठीक है। द एस आई यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, वो लिखा हुआ है केजी मीटर पर क्यूब। वी कैन कैलकुलेट द मटीरियल, वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल if we know its mass, if we know its mass, अगर हमें उसके मास का पता हो, if we know its mass and its volume, for example the mass of a 5 liter of water, 5 किलो पानी है और उसकी mass कितना है, 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 किलो। इट्स डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन। हमें पता है सिंस 1 लीटर हो तो वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। और 5 लीटर हो तो कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड पे, तो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वो कितनी होगी फिर, वो हो जाएगी बेटा 5 किलो डिवाइडेड बाई 5, उसको 5 किलो पर डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, 5 लीटर कितना होता है 5 × 10⁻³ ठीक है मीटर क्यूब। तो 5 किलो को डिवाइड कर दिया उसके वॉल्यूम पर, तो हमारे पास कितना आंसर है 1000 kg मीटर पर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो कम आउट टू 1000 किलोमीटर पर क्यूब, which is also you can see that from the table of the density of the various substance, the water density has 1000 किलोमीटर पर क्यूब। ऑलराइट, इसके अलावा बेटा जो डेंसिटी के इक्वेशंस हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप यहाँ से 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हो। आप किसी चीज़ का मास भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको उसकी डेंसिटी और उसका वॉल्यूम का अंदाज़ा हो, कैसे मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और थर्ड आप क्या फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम भी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या दैट सब्सटेंस, ठीक है, बाय नोइंग द mass and density. So this is all the discussed the numerical which is relevant to the previous article name is density. The example 7.1, page number 128, physics chapter number 7, the properties of metal. Now the mass of the 200 centimeter of stone is 500 grams. Find its density. So in the given numerical we have the mass and the volume which is given, which is our data. The mass is equal to 500 grams and V is equal to, V is stand for volume, volume is equal to 200 centimeter cube. So now we know the formula of density which we have read in the previous lecture. Density is equal to mass per unit volume. So by putting the value of the mass and the volume we can get the density of the stone. Here the mass is equal to 500 grams and the volume is equal to 200 centimeter cube. So by after dividing we can get the 2.5 g per gram per centimeter cube. Thus this is the density of the stone which is equal to 2.5 gram per centimeter cube. So I think it is easy, you can easily attempt it. If there any problem you can ask me in after the class, ठीक है। Alright, now the major topic which we want to be read out today is that the pressure beta, basically the pressure is a physical quantity in the scientific term or in the scientific study, ठीक है, but in the generally we just know that the pressure is just a jerk pulling someone, but in the science or in the physics there pressure is a physical quantity which having some specific formula. All right, so I am reading the paragraph for your convenience, ठीक है, and after that I am explain it. Press a pencil from its end between the palms, ठीक है, palms मतलब your hands का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसे palm कहते हैं,
द palm pressing the tip feel much more pain than the palm pressing its blunt end. कहता है कि अगर आपने इसको दबाया है अपने पाम से तो वो कम पेन को फील करता है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे जो उसका सेकंड एंड है जहाँ पे आपने दबा रहे हो पिन को, ठीक है. We can push a drawing pin into the wooden board by pressing it by our thumb. कहते हैं हम लोग इजीली किसी भी थंब पिन को वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर कर लेते हैं by pressing it by our thumb, ठीक है. It is because of force we applied on the drawing pin. ये क्यों होता है कि हम लोग एक ड्राइंग पिन के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द ड्राइंग पिन. ड्राइंग पिन इज़ कन्फाइंड जस्ट एट अ वेरी स्मॉल एरिया अंडर इट्स शार्प टिप. कहता है आप अगर देखें तो वहाँ पे एक बड़ा कन्फाइंड एरिया होता है जो सर्कल बना होता है ना उसकी पिन के ऊपर वाली जो साइड होती है, द अबव साइड ऑफ द पिन, ठीक है. तो वो स्मॉल एरिया होता है उसको जब हम लोग शार्पली ना प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट होती है. अ ड्राइंग पिन विद अ ब्लंट टिप, ब्लंट मतलब होता है बड़ा शार्प टिप है उसका, वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश इनटू द बोर्ड ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ इट्स टिप. अगर तो ब्लंट मतलब बहुत छोटा एरिया, अगर लार्ज एरिया हो ना नीचे वाला जो पिन का जो पिन होती है ड्राइंग पिन की होती है वो बहुत ब्लंट होती है, बड़ी छोटी सी होती है. अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी या ज़्यादा लार्ज होगी तो बड़ा मुश्किल होगा कि वो एरिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसके एंटर होना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए तो देखिए जो ब्रीक साइड होती है, थिक साइड जो होती है वो जल्दी एंटर हो जाती है, ठीक है, into the wooden board. In these examples we find that the effectiveness of the small force is increased if the effective area of the force is reduced. कहता है कि अगर आपकी फोर्स तब ज़्यादा होती है, फोर्स की जो एफिशिएंसी है वो तब ज़्यादा होती है जब आपका उस ऑब्जेक्ट का एरिया जो होता है वो छोटा होता है या उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. द एरिया ऑफ द टिप ऑफ द पेंसिल और डैट ऑफ द नेल इज़ वेरी स्मॉल एंड हेंस इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स. कहता है जो एरिया होता है टिप ऑफ द पेंसिल वो या नेल का वो काफ़ी स्मॉल होता है एंड हेंस इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स. और फोर्स की जो एफिशिएंसी को वो क्या करता है इंक्रीज़ करता है. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, एफिशिएंसी, ठीक है. द क्वालिटी डैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन एरिया ऑन विच अ फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड एज प्रेशर. कहता है ऐसी क्वांटिटी जो फोर्स के ज़्यादा होने पे इंक्रीज़ होती है और प्रेशर के ज़्यादा होने एरिया के ज़्यादा होने पर डिक्रीज़ होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर. एंड बेसिकली जो एग्जांपल है इसकी डेफिनेशन है वो आप लोग मिल जाएगी. जो पिंक बॉक्स बना हुआ है उसको अगर आप रीड आउट करें, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज प्रेशर. ऐसी फोर्स होगी जो किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया किसी भी एक खास हिस्से के ऊपर पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर बॉडी के एक्ट कर रही है सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज प्रेशर. यानी P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया where P stands for pressure, F stands for force and area stands for area, ठीक है. in the further in the page number 149 the pressure is a scalar quantity. now pressure जो है वो भी एक scalar quantity है. why? because in the SI as we know that area is a scalar quantity so pressure is also a scalar quantity. scalar quantity means that ऐसी quantity physical quantity जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हो या न्यूमेरिकल वैल्यू. मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद सिर्फ जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हो. इन द SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल डोनेटेड बाय PA, ठीक है. दस 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल यानी 1 PA. So this is your article of pressure. I hope you understand
if there any problem to you, you can easily ask to me. I am always available to you. Alright, for the next class we will study the atmosphere pressure and its experiment. Okay, Allah Hafiz.